है. Okay. So we're going to do adaptation in animals, but this time the animals are aerial animals, reptiles, and also for food specific. So food specific पे मैं वापस आऊंगा, but फिलहाल let us look at aerial animals. Okay. So what are aerial animals? Before that, before we begin, can someone tell me what are animals and how are they different from plants? Animals क्या होते हैं और वो plant से different क्यों होते हैं? कोई बता सकता क्योंकि है? भैया वो खाना खाते. और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट से ना बस पानी पीते. ओके. सादिका No, सिद्दीका. भैया, because the animals are eat, बोले तो animals जो रहते ना वो दूसरे का भैया खाते. All right, before we continue, can we please have one of those Sadika Siddika speaking? बाकी सब mute पे रह सकते, सब chance by chance बात करनी है. हाँ, भैया, animal. जो animals रहते ना वो खुद का खाना बना के नहीं खाते, किसी और का खाना बना के खाते. Excellent. Animals मतलब कोई भी जो दूसरों को खाता है. That animals eat other. Food. नहीं, other organisms. Animals eat other organisms. Okay. Plants जो make their. plants रहते ना, हाँ. plants eat food. Own food. Make their own food. Very good. Make their own food and eat. And eat. Yes. Make their own food and eat. All right. Very good. Okay. So animals eat other organisms. Animals are those organisms which eat other organisms. Okay. So can you please take this down? अपने book में ये लिख लो please. अपने book में लिख लो. Although सबको आता है, please write this in your book. Take 2 minutes. So we'll study aerial adaptation. Aerial adaptation पढ़ने वाले हैं. So aerial means living in the air. जो हवा में रहते हैं या जो हवा में मिलते हैं उनको aerial बोलते हैं, right? Aerial. Please look at the spelling. Remember the word aerial. Okay. Animals that spend a lot of time in air are called aerial animals. Animals जो हवा में बहुत time बिताते हैं, they are called aerial animals. Okay, हवा में जो time बिताते हैं, they are called aerial animals. These include some insects. कोई insects जो insects मतलब I don't know what they call it in Hindi, but yeah, these include some insects, some birds and bats. Okay, तो ये तीन चीजें आ जाती है generally aerial animals में. Insects, right? Birds and bats. Aerial animals have to be adapted for flying. Obviously they have to be flying, right? Aerial animals का adaptation क्या होगा? उड़ने के लिए होगा ताकि वो उड़ सकते हैं, right? One minute. Why did they do this? Okay. Moving on. Aerial adaptation. So सबसे पहला aerial adaptation है wings या पंख. So wings are the first and foremost aerial adaptation. They enable the animal to fly. So ये जो होते हैं वो of course animal को fly करने देते हैं. These are wings of a bird and these are wings of an insect. देखिए दोनों पंख कैसे अलग अलग है, right? They are both different. The wings, both the wings are different. So wings are first and foremost aerial adaptation. They enable the animal to fly, right? हाथ के बदले उनके पास wings होते हैं. Yeah, moving on. Next aerial adaptation is feathers. Feathers are adaptations in some aerial animals. Some मतलब थोड़े, सारों में नहीं होते. That help them fly. Again, feathers भी क्या करते हैं? उनको उड़ने में मदद करते हैं. That help them fly. उड़ने में मदद करना. Okay. जैसे हमारे पास बाल होते हैं, बाल के बदले ये इफ यू सी बाल के बदले ये बर्ड्स में क्या होते हैं? फेदर्स होते हैं. ओके. नेक्स्ट एरियल एनिमल्स का शेप आप देख रहे हो. बीच में मोटा, एंड में पतला होता है, एंड में पॉइंटी होता है. तो उसकी वजह से जो हवा आती है वो उनके आजू बाजू से निकल जाती है. सो एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब रोकना. सो एयर का जो रोकना है वो कम हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है, राइट? एंड दिस हेल्प्स देम फ्लाई. सो दे हैव अ स्पिंडल शेप्स. ये जो शेप होता है, ये बीच में मोटा और एंड में ऐसे, यू नो, इट्स कॉल्ड टेपरिंग. बट ये पतला जो होता है उसको स्पिंडल शेप बोलते हैं.
ओके, नेक्स्ट एरियल अडेप्टेशन, ये काफी ज्यादा interesting है. This is very interesting. Aerial animals have hollow bones which reduce their weight and hence help them fly. जो aerial animals होते हैं उनके जो bones होते हैं वो hollow होते हैं. hollow मतलब उसके अंदर कुछ भरा हुआ नहीं होता. ओके, सो इफ यू कैन सी ये ह्यूमन का बोन है जिसमें सब भरा हुआ है, ये सब ब्लड वगैरह बोन मैरो भरा हुआ है. बट ये ईगल का जो बोन है अंदर से खोखला होता है, खाली होता है, हॉलो होता है. राइट, सो हॉलो बोन्स की वजह से क्या होता है, विच रिड्यूसेस देयर वेट, तो उनका वेट कम हो जाता है और उससे वो उड़ सकते हैं. दिख रहा है आपको, ये अंदर हॉलो है, ये खोखला नहीं है. आई वांट टू शो यू अनदर इमेज. So I'm going to show you another image. So भैया मेरे को नहीं समझ रहा. अगर ये जो एरियल एनिमल्स होते हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं. नेक्स्ट एरियल अडेप्टेशन, ये सबसे बड़ा एरियल अडेप्टेशन है. एरियल एनिमल्स हैव लाइट बॉडीज व्हिच हेल्प देम फ्लाई. लाइट मतलब ऑफ कोर्स जो भारी नहीं होती, लाइट मतलब नॉट हैवी. ओके, व्हिच हेल्प देम फ्लाई, तो ऐसे मोटे मोटे तो नहीं होते हाथी जैसे, है ना, एकदम छोटे होते हैं और पतले होते हैं, तो उसकी वजह से वो उड़ पाते हैं. राइट, लाइट, वो हैवी नहीं होते. सो एरियल एनिमल्स की बॉडी भी एकदम लाइट होती है और स्मॉल होती है. ओके, कभी देखा हाथी को उड़ते हुए? नो, राइट, बिकॉज वो इतना बड़ा होता है एंड वो काफी भारी होता है. सो या सो ये एक अडेप्टेशन है इस, ये क्योंकि वो भारी नहीं है, क्योंकि वो बिकॉज दे आर लाइट, क्योंकि वो हल्के हैं, राइट, वो उड़ पाते हैं. मूविंग ऑन, नेक्स्ट एरियल अडेप्टेशन. हाँ बोलो. You can. कंटिन्यूइंग, नेक्स्ट एरियल अडेप्टेशन, बैट्स में देखा जाता है एक एरियल अडेप्टेशन. बैट्स हैव अ फोल्ड ऑफ स्किन, चमड़ी होती है उनके पास, कॉल्ड पैटाग्नियम व्हिच हेल्प्स देम फ्लाई. सो अगर आप ये देख रहे हो, ये जो बैट की जो विंग्स है वो एक्चुअली क्या है, वो कुछ नहीं है बट वो स्किन है जो उनका ये हाथ और पैर कनेक्ट कर रही है. राइट, हैंड और लेग, ये देखो यहाँ से कनेक्टेड है और यहाँ से कनेक्टेड है, और ये जो स्किन होती है उसका नाम है पैटाग्नियम. तो कोई कोई जो उड़ते हैं बैट होते हैं, फ्लाइंग फॉक्स होते हैं, they have this skin called पैटाग्नियम which helps them fly. Okay, हमारे में ये स्किन होती है पैर और लेग के बीच में से. Do we have the skin? Hello students. यस भैया सुन रहे ले, बोलो. हाँ, तो हमारे में ये स्किन होती है? No. नो, राइट. सो ये बैट में स्पेशल है ना, उसको वो पैटाग्नियम बोलते हैं. ये बैट में स्पेशल है, दैट इज कॉल्ड पैटाग्नियम. ये उसके हाथ है यहाँ पर और ये उसके पैर है, और पैर और हाथ के बीच में ये जो स्किन है उसको पैटाग्नियम बोलती है, जिससे वो उड़ सकता है. ओके, मूविंग ऑन. Yes भैया. हाँ बोलो. वो जो बैट रहता तो. भैया मेरे को नहीं समझा. कौन सा वाला? अगला वाला, अगले वाले पर जाते हैं. दैट इज रेप्टाइल अडेप्टेशंस. सो रेप्टाइल क्या होते हैं? दीज आर एनिमल्स दैट क्रीप एंड क्रॉल, जो जमीन पे से रेंगते रेंगते चलते हैं. राइट, दे क्रीप एंड क्रॉल, या फिर ऐसे ऐसे चारों, हाँ, दे बेसिकली रेंगते रेंगते चलते हैं, धीरे धीरे अपने चारों पैर पे चलते हैं. राइट, सो दे हैव अडेप्टेशंस ऑन देयर लेग्स एंड बॉडीज टू हेल्प देम मूव. तो रेप्टाइल में ये होता है कि उनको चलने के लिए अडेप्टेशंस होते हैं उनके लेग्स बॉडीज पे, जो उनको चलने में मदद करते हैं. सो लेट्स क्विकली गो ओवर एग्जांपल्स ऑफ रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स के एग्जांपल, व्हाट इज दिस, कौन सा एनिमल है ये? Crocodile. टॉर्टोइस. द आंसर इज टॉर्टोइस. ये टॉर्टोइस है. व्हिच इज दिस एनिमल? ये वाला एनिमल कौन सा है? Snake. स्नेक. गुड जॉब. व्हाट अबाउट दिस वन? ये कौन सा है? Crocodile. क्रोकोडाइल. करेक्ट. एंड दिस? Lizard. लिजर्ड. All right, so everyone knows the different animals. Good. Okay, so ये सारे जो animals है वो उनको बोलते हैं reptiles. उनको बोलते हैं reptiles. Okay, also ध्यान दो, ये tortoise है, ये turtle नहीं है, tortoise है. Okay, और वो रेंग, और ये जो सारे animals है वो रेंगते रेंगते जमीन पर चलते हैं. Right, so reptile में क्या adaptation होता है? Snakes have scales. भैया. हाँ, Small baby. Small baby. reptiles are different. So snake का example लेते हैं. Snakes have scales. Scales मतलब ये बारीक बारीक दिख रहा है snake पे, ये ऐसा ऐसा एक एक,
है ना, पूरी बॉडी पे. सो स्नेक्स हैव स्केल्स Yes. व्हिच हेल्प देम ग्रिप द ग्राउंड एंड मूव. तो ये वो स्केल्स की वजह से, कलरफुल है भैया. हाँ वो कलरफुल है, बट आपको ये दिख रहा है ये एक एक छोटे छोटे स्नेक पे. हाँ, हाँ, तो उनको बोलते हैं स्केल, डिजाइन के जैसे. उनको बोलते हैं स्केल. एंड दे हेल्प देम ग्रिप द ग्राउंड. सो वो ग्राउंड पे उनको पकड़, इसकी वजह से वो ग्राउंड पकड़ सकता है और वो आगे बढ़ सकता है ना, वो ग्राउंड को पकड़ के आगे बढ़ सकता है, ये स्केल्स की वजह से वो पकड़ सकता है. ओके. Next, reptiles have claws on their limbs to help them grip the ground and crawl. So जो reptiles के पास limbs मतलब हाथ पैर होते हैं, उन लोग के हाथ पैर पे claws होते हैं. So claw दिखाता हूँ मैं आपको. अगर इसको और zoom करेंगे तो ये जो छोटा वाला है, ये जो उसके पैर है, उस पे आप देख रहे हो नाखून कितने बड़े बड़े हैं, उसको हम claw बोलते हैं. So reptiles have claws on their limbs which help them grip the ground and crawl. Okay, तो वो जो claws होते हैं वो जमीन को पकड़, मतलब उसकी वजह से वो जमीन पकड़ सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं. Okay, moving on. Adaptations of for okay, so ये reptile के adaptations है. अब last वाला part है bird adaptations for food. bird का adaptation देखेंगे खाने के लिए, for food. Okay, so before that let us see the parts of a bird. Just look at the parts of a bird. उसमें ये beak है, ये crest है, nape, throat, crest, nape, throat, हाँ trunk, tail, foot. हाँ, all right, good, right? So where does bird eat from? bird कहाँ से खाना खाता है? beak. good. और खाना पकड़ता कहाँ से? nape. नहीं, वो खाना भैया beak से पकड़ते. बीक से ही पकड़ता है या फिर फुट से पकड़ता है? नहीं, foot. दोनों जगह से, बीक से और फुट से, दोनों से पकड़ते हैं. ठीक है, सो देखते हैं अभी बर्ड अडेप्टेशन फॉर फूड. बर्ड में फूड के लिए क्या क्या अडेप्टेशन होता है? बर्ड बीक्स आर अडेप्टेड फॉर द फूड दे ईट. सो बर्ड की जो बीक होती है वो उस पर डिपेंड करती है जिस तरह का फूड बर्ड खाता है. ठीक है, तो जैसे ये टूकॉन है, पैरेट एंड हॉर्नबिल. सो ये टूकॉन है, उसकी बीक देखो कैसे बड़ी है और मोटी है. सो toucans, parrots and hornbills have long hard beaks to break nuts. तो वो ज्यादातर ये नट खाते हैं ना, नट्स वगैरह खाते हैं, तो उसकी वजह, अखरोट वगैरह है ना, ऐसे वो जो हार्ड होते हैं उसको हम नट्स बोलते हैं. सो toucans, parrots, hornbills have long hard beaks to break nuts. तो उनकी जो beaks होती है toucan की, parrot की, hornbill की, वो बड़ी होती है और बहुत ही हार्ड होती है. क्यों? ताकि वो नट तोड़ सके. ओके. birds of prey are those birds which one second, sorry, birds of prey, right? Birds of prey are those birds that hunt and eat animals like fish, mice and snakes. So birds of prey ये वाले जो दूसरे एनिमल जैसे फिश है, माइस है, स्नेक्स है, इनको हंट करके खाते हैं. ओके, सो दे हैव शार्प टैलेंस एंड बीक्स. टैलेंस मतलब ये जो उनके पैर पे ये नाखून होते हैं उनको हम टैलेंस बोलते हैं. एंड ये बीक, of course, right? ये तो बीक सबको पता ही है. So they have very sharp talons and beaks ताकि वो hunting कर सके. Okay, and that's why they are called birds of prey. Prey word हम पहले पढ़ चुके. Yes, tell me. What is talent? Homework. So homework में एक बार देख लो. Search for the animal golden plover. Golden plover करके एक animal है. Hint वो bird है. Okay. Search for that animal. गूगल पे सर्च करना या कहीं पर भी. राइट अबाउट द अडेप्टेशन इन इट्स चिक्स. सो जो बर्ड के बच्चे होते हैं हम उनको चिक्स बोलते हैं ना, बर्ड्स के बच्चे को हम चिक्स बोलते हैं. तो ये जो एनिमल है गोल्डन फ्लावर, उसके बारे में सर्च करो ऑनलाइन और फिर उसके चिक्स को देखो. ठीक है, और वो चिक्स में क्या अडेप्टेशन है उसके बारे में लिखो आप. ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes भैया समझ गया. या भैया Okay,